Hi students, so this is Sachin Jain here coming up with short tricks to crack any hybridization question. So this is a part of inorganic chemistry which many students find difficult because the basics are not clear and they try to mug up everything. But the thing is, inorganic could be very simple if you try to understand the similar things and apply the same logic for the other concepts. So in a way, the overall inorganic chemistry is not that tough, and this short tricks which I'm coming up with will definitely help you to ease your burden of inorganic chemistry. So let's start. Here, I'm going to talk about the hybridization aspect of the molecules or the anionic species or even the cationic species. So hybridization के लिए what I'll do is first I will give you the concept of VSEPR theory. So chemical bonding में you might have studied about the valence shell electron pair repulsion theory. VSEPR theory is nothing but valence shell इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी. अब अगर ये नाम को ही तोड़ दो तो थिंग्स बिकम वेरी सिंपल. Valence shell of any element have the electron pairs. Now those electron pairs could exist as bond pairs BP, or if they are unshared they could exist as lone pairs. And between the bond pair and the lone pairs there are different type of repulsions. Now since the lone pair occupy a greater space in three-dimensional since the lone pairs occupy a greater space in three-dimensional region, and since they are the unshared electron, they try to repel the bond pair more. And if there are multiple lone pairs, that is more than one, then the repulsion between the LPs is maximum. So repulsion order is LP-LP is greater than LP-BP and is greater than BP-BP. So a valence shell contains the electron pairs in the form of bond pairs and lone pairs, and between them there is a repulsion in the order LP-LP greater than LP-BP and greater than BP-BP. So this is the basic funda of valence shell electron pair repulsion theory. ठीक है. दूसरी बात, whenever we talk about the BPs and LPs, the sum of the bond pairs and the lone pairs would give you the number of hybrid orbitals, would give you the number of hybrid orbitals. ठीक है. And यहाँ पर whenever you have multiple bonds, they are to be considered as super single bonds. मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स अगर रहेगा तो they are to be considered as super single bonds. इसका रीजन एक ही है कि hybridization में the hybrid orbital do not consider the pi bonds formed by lateral overlap. तो मल्टीपल बॉन्ड में तो हमारे पास सिग्मा और पाई होता है, तो पाई के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन को हम कंसिडर नहीं करते हैं. तो जहां डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा वहां पर आप क्या करो, एक ही बॉन्ड को काउंट करो. इसीलिए हम सिंपल क्या बोल देंगे, डबल बॉन्ड इज टू बी काउंटेड एज वन एंड इट्स अ सुपर सिंगल बॉन्ड. Now based on the number of hybrid orbital, the number will give you the identification of the hybridization. Yani if the number of hybrid orbital starts with minimum of 2, then the hybridization corresponding to that is sp. Hybrid orbitals अगर 3 है तो it will be sp2, spp, that is sp2. अगर 4 होगा तो sppp, that is sp3. 5 होगा तो p is having a maximum of 3 orbital px, py and pz. तो अगर p खत्म हो जाएगा तो आप d को रिलेट करोगे, तो with 5 orbital it will be a combination of spp and d. Then with 6 it will be sp3d2. and अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d3. So these are the common hybridization which you can directly just identify through the hybrid orbital. कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है,
खाली आप बीपीज एलपीज करेक्टली फाइंड करो, उसके बाद उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को आइडेंटिफाई करो एंड यू गेट द करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन. One more thing, the geometry of the molecule or the species would be dependent on the presence or the absence of lone pair. अगर लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो मॉलिक्यूल विल हैव अ परफेक्ट ज्योमेट्री. लोन पेयर होगा तो ज्योमेट्री गेट्स डिस्टॉर्टेड एंड यू गेट अ करस्पॉन्डिंग शेप which will be due to the distortion by the lone pairs. ठीक है. सो अब ये VSEPR को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू द शॉर्टकट ट्रिक. तो यहाँ पर 3 स्टेप अप्लाई करना है टू गेट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी गिवन स्पीशीज. फर्स्ट, आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम. पहला क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम. उसके बाद उस सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो देख लो. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सिंपली द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. नाइट्रोजन के 5, फॉस्फोरस के 5, सल्फर के 6, जेनॉन या फिर इनर्ट गैसेस आएगा तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में. अब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने बीपी बना रहा है, मतलब कितने बॉन्ड्स बना रहा है, और कितने उसमें अनशेड है, मीनिंग कितने लोन पेयर्स बना रहा है, that will give you the number of hybrid orbital. And once you get hybrid orbital, hybridization तो directly मिल ही जाएगा. तो कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है. Now let's look at some examples for neutral molecules. पहला, let's say NH3. Now the central atom is nitrogen. There are 5 valence electrons. 5 में से 3 हाइड्रोजन के साथ गए तो बचे 2 इलेक्ट्रॉन. And 2 electron will exist as one lone pair. Lone pair यानी pair of electrons. तो directly orally मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि the central atom have 3 BPs plus 1 LP that is equal to 4. Hence the hybridization is sp3. And sp3 के साथ अगर ज्योमेट्री बोलूँ तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगा, लेकिन लोन पेयर की वजह से डिस्टॉर्शन आने की वजह से द shape will be pyramidal. Geometry is tetrahedral, shape will be pyramidal. Orally you can identify the hybridization and the other details. और अगर बॉन्ड एंगल की बात करूं तो वो टेट्राहेड्रल एंगल से कम होगा and because of the distortion it has an angle of about 107 degree. Second, if I talk about CH4, the common example. So carbon have 4 valence electron. उसमें से 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर किए तो एक भी लोन पेयर नहीं है, यानी 4 बीपी 0 एलपी इक्वल्स टू 4. मतलब यहाँ पर ये परफेक्ट sp3 होगा विद अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड द बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट्स. उसके बाद इफ आई कंसिडर वाटर, देन वाटर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, उसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 में से 2 गए, बचे 4, मतलब 2 लोन पेयर्स, 4 अनशेड इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 लोन पेयर्स. तो यहाँ लिखेंगे 2bp प्लस 2lp विच इज इक्वल टू 4. तो ये हो गया sp3. एंड अगेन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है बट शेप विल बी वी शेप या फिर बेंड with an angle of about 104.5 degree. Angle of 104 degrees 35 minutes to be specific, approx 104.5 degree. Then let's say we have SO2. तो again central atom is sulfur. सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, उनमें से ऑक्सीजन को शेयर होगा 2 ईच, बिकॉज ऑक्सीजन डाइवेलेंट एलिमेंट है. मतलब 6 में से 2 इस ऑक्सीजन के साथ शेयर हुआ, 2 इस ऑक्सीजन के साथ शेयर हुआ, एंड नाउ आउट ऑफ 6 4 हैव गॉन एंड रिमेनिंग 2 विल एग्जिस्ट एज अ लोन पेयर. तो स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया. तो अब यहाँ पर सुपर सिंगल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आएगा कि यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है तो यू हैव टू कंसिडर एज अ सुपर सिंगल बॉन्ड. तो सुपर सिंगल बॉन्ड के हिसाब से 2 बीपी है, 2 बॉन्ड पेयर्स है और 1 लोन पेयर है, मिलकर हो गया 3 मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2. लोन पेयर है तो ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हो जाएगा. वैसे तो ये प्लेनार ज्योमेट्री होगा लेकिन द शेप विल बी एंगुलर और वी शेप या बेंड, एंगुलर या वी शेप या बेंड. देन अगर SO3 आया
तो अगेन एटम सेंट्रल में सल्फर है, 3 ऑक्सीजन है, अब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो दो और दो करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी अनशेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मतलब 3bp सुपर सिंगल बॉन्ड कंसिडर करेंगे, कोई लोन पेयर नहीं है, and that gives you the total hybrid orbital equal to 3, and the hybridization is sp2 with a planar arrangement, with a planar arrangement। Then आगे we have PCl5। तो phosphorus is the central atom, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर पांचों के 5 गए, तो 5bp नो एलपी, हाइब्रिडाइजेशन 5 के हिसाब से हो गया sp3d। एंड sp3d में परफेक्ट अरेंजमेंट होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिड, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। Then I have ICl7। तो सेंट्रल एटम आयोडीन, हैलोजन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सातों के साथ क्लोरीन के साथ बॉन्ड हो गए, मतलब 7 बॉन्ड पेयर्स है, एक भी लोन पेयर नहीं है, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 7, hybridization sp3d3, and this will have the geometry as pentagonal, 5 इन द सेम प्लेन, तो पेंटागन बनाएगा, एक ऊपर एक नीचे, दोनों का पिरामिड इज बाई पिरामिड, पेंटागनल बाई पिरामिड। देखो sp3 के बाद जो भी हाइब्रिडाइजेशन है उनमें वन उनमें 2 ऑफ द ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज अबव एंड बिलो द प्लेन। जैसे sp3d में 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है, 5 में से एक ऊपर एक नीचे, बचा 3। अब 3 एक ही प्लेन में ट्राइंगल बनाएगा, इसलिए इसको ट्राइगोनल बाइपिरामिड बोलते हैं। sp3d2 में 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, उसमें से एक ऊपर एक नीचे, बचा 4, एक ही प्लेन में स्क्वायर बनाएगा, ऊपर खींचो पिरामिड टेट्राहेड्रल फॉर्म में, नीचे खींचो पिरामिड टेट्राहेड्रल फॉर्म में, इसलिए उसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। और sp3d3 में 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक ऊपर एक नीचे, बचे 5, 5 एक ही प्लेन में पेंटागन बनाएगा, तो इट विल फॉर्म अ पेंटागनल बाई पिरामिड लाइक दिस, पेंटागन बाई पिरामिड। सो एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। इफ आई हैव SF6, सेंट्रल एटम सल्फर है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, क्लोरीन के साथ 6 के 6 बॉन्ड हो गए, तो इट विल हैव 6bp नो lp, टोटली इक्वल टू 6, एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, एंड अभी बताया ज्योमेट्री होगा ऑक्टाहेड्रल। अब कुछ डिस्टॉर्शन को देख लेते हैं। तो SF4, सेंट्रल एटम सल्फर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 4 गए, बचे 2 अनशेड, विच विल करस्पॉन्ड टू 1 लोन पेयर, तो 4bp 1 lp, टोटल 5, हाइब्रिडाइजेशन sppp एंड d, sp3d, और लोन पेयर की वजह से ये हो जाता है सीसॉ। देन ClF3, सेंट्रल एटम क्लोरीन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, उनमें से 3 गए, बचे 4, तो जो 3 गए वो बॉन्ड पेयर्स बना रहे हैं, जो 4 बचे वो 2 लोन पेयर्स है, मतलब टोटल हो गए 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, एंड 2 लोन पेयर की वजह से ये हो जाता है टी शेप्ड। देन वी हैव BrF5, ये सब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है जो मैं बता रहा हूँ। So bromine central atom bromine, so 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनमें से 5 गए, बचे 2, 5 गए मतलब 5bp, बचे 2 यानी 1 lp, टोटल हो गया 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, एक लोन पेयर की वजह से इट विल हैव स्क्वायर पिरामिड अरेंजमेंट, स्क्वायर पिरामिड अरेंजमेंट। देन लेट्स से वी हैव xenon का O2F2 वाला मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो जेनॉन सेंट्रल एटम है, उनमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, उसके बाद फ्लोरीन के साथ यहाँ पर F और यहाँ पर F सिंगल बॉन्ड्स, तो 6 चले गए, और अब बचा 2 इलेक्ट्रॉन एज लोन पेयर, तो अब मल्टीपल बॉन्ड को सुपर सिंगल बॉन्ड
इसीलिए यहाँ पर 4 बीपी 1 एलपी इक्वल टू 5 हाइब्रिडाइजेशन sp3d। और अब एक लोन पेयर की वजह से यहाँ पर सीसॉ शेप आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव XeF6। तो सेंट्रल एटम ज़ेनॉन, उनमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 6 गए, तो 6 बीपी प्लस 2 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड मतलब 1 एलपी इक्वल टू 7, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3। और इस केस में इसका जो अरेंजमेंट है, द लोन पेयर लाइज इन द octahedron arrangement. That is why this is exceptionally named as distorted octahedral. Distorted octahedral. Then let's say I have XeO3। तो XeO3 में अगेन जेनॉन अपना सेंट्रल एटम है, 3 ऑक्सीजन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और बचे 2, दैट विल एग्जिस्ट एज अ लोन पेयर। मतलब 3 बीपी प्लस 1 एलपी इक्वल टू 4, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, लोन पेयर की वजह से आ गया पिरामिडल। So these are the various examples जो मैंने आपको बताए, जहां पर आप जस्ट लुकिंग एट द सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनालाइज करके बीपी एलपी फाइंड करके हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई कर सकते हो विदाउट एनी डैम फॉर्मूला। अब कमिंग टू ऑक्सो अनायंस, तो बहुत सारे ऑक्सो अनायंस हैं जिसके स्ट्रक्चर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड डिफिकल्ट, लेकिन इसमें एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ जिसमें आप स्ट्रक्चर भी बना पाओगे और हाइब्रिडाइजेशन भी सोच सकते हो। जैसे लेट्स से आई हैव नाइट्रेट अनायन, सल्फेट SO4 2 माइनस, फॉस्फेट PO4 3 माइनस, ये स्पीशीज के हमें हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने हैं। सो इस केस में जब भी ऑक्सो अनायंस आए तो उनका करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर सोचो। तो जस्ट बॉन्ड द H प्लस इक्वल टू द चार्ज, तो NO3 माइनस 1 में एक H प्लस लगा दो, नाइट्रिक एसिड समझेगा। SO4 माइनस 2 में सल्फ्यूरस एसिड, PO4 3 माइनस में H3PO4, और एक परक्लोरेट भी ले लेते हैं, दैट इज ClO4 माइनस, which will have perchloric acid as the corresponding acid। अब ऑक्सी एसिड्स में इंटरेस्टिंग ये है कि जो सेंट्रल एटम है दैट इज ऑलवेज बॉन्डेड टू द OH ग्रुप। तो यहाँ पर HNO3 के केस में N विल बी बॉन्डेड टू 1 OH एंड देन बचे 2 ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनमें से एक तो OH के साथ शेयर हुआ, बाकी 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड करेगा, एंड और 2 बचा ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ डबल बॉन्ड नहीं कर सकता बिकॉज नाइट्रोजन एक सेकेंड पीरियड एलिमेंट है और सेकेंड पीरियड एलिमेंट अपना कोवेलेंस चार्ज के ऊपर एक्सपांड नहीं कर सकता। तो हैविंग दैट नॉलेज, this nitrogen can have only one more bond possible. That's why there is a coordinate bond between nitrogen oxygen, that is plus and minus the formal charge। स्ट्रक्चर तैयार, H प्लस निकाल दो, ये हो गया नाइट्रेट आयन। सल्फेट के लिए सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी H2SO4 होगा यहाँ पर। सो यहाँ पे सल्फर विल बी बॉन्डेड टू 2 OH आजू बाजू, बचे 2 ऑक्सीजन, तो सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, क्योंकि ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है तो इसका कोवेलेंस 4 से ज्यादा हो सकता है। अगेन H प्लस को निकाल दो और ये हो गया आपका सल्फेट स्ट्रक्चर। फॉस्फेट के लिए विल हैव फॉस्फोरस विद OH, OH एंड OH, बचा एक और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो इस केस में H H H निकाल दो, ये हो गया आपका नेगेटिव चार्ज। और पर क्लोरिक एसिड में क्लोरीन विल बी बॉन्डेड विथ 1 OH, उसके बाद 3 ऑक्सीजन, अगेन ये थर्ड पीरियड एलिमेंट है, बिंदास यहाँ पर कोवेलेंस 4 से ऊपर कर सकते हो। H प्लस निकाल दो, ये बन गया आपका पर क्लोरिक एसिड। अब अगर स्ट्रक्चर्स आपके सामने हैं तो जस्ट काउंट द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड द लोन पेयर्स, ठीक है। तो नाइट्रोजन के केस में ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर यूटिलाइज्ड, सो ओवरऑल देयर आर 3 BPs। So 3 BPs के हिसाब से the hybridization over here will be equal to sp2। फिर सल्फर के लिए there are overall 4 BPs, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। फॉस्फोरस के लिए भी 4 BP यानी sp3, और क्लोरीन के लिए भी 4 BP यानी sp3।
यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर के साथ लोन पेयर अगर होता तो लोन पेयर भी दिखाते, बट सिंस देयर आर नो लोन पेयर्स द हाइब्रिडाइजेशन इज डायरेक्ट। ठीक है, अब मान लो एक एग्जांपल सल्फ्यूरस एसिड का लेते हैं जिसका सल्फाइड आयन दिया हो और उसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना है। तो फंडा रिमेन्स द सेम, सल्फर के आजू बाजू OH OH और एक ऑक्सीजन बचा विच विल हैव डबल बॉन्ड। तो इस केस में 6 में से देयर आर ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स यूटिलाइज्ड, हेंस देयर विल बी वन लोन पेयर। तो अब अगर H+H+ निकाल दो तो ये बन गया आपका सल्फाइड आयन। तो द नंबर ऑफ BPs आर 3 एंड द LP आर 1। तो यहाँ पर 3 BP plus 1 LP gives you 4 and the hybridization would be sp3। एंड ज्योमेट्री अगर बात करें तो टेट्राहेड्रल होगा बट डिस्टॉर्टेड शेप के हिसाब से इट विल बी पिरामिडल। So this is how you can find the hybridization of any given species using the funda of VSEPR in a shortcut manner। आपको कोई फॉर्मूलाज यहाँ पर अप्लाई नहीं करने हैं। बहुत सारे बुक्स में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में आपको एक फॉर्मूला दिया जाता है जिसको अप्लाई करके यू कम टू द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड देन यू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन विच बिकम्स टास्किंग। बट यहाँ पर आप सिंपली क्या कर रहे हो, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से BPLP फाइंड कर रहे हो और उस नंबर के हिसाब से द हाइब्रिड ऑर्बिटल के नंबर के हिसाब से डायरेक्टली यू आर गेटिंग द हाइब्रिडाइजेशन। दैट्स ऑल, थैंक यू।